हाँ अरे उतना ही है मेरा एक्सपोजर। Thank you so much. रोशना भी May I request kindly everybody to function? कट कर भाई कट। Kindly settle down as we are to start with our next formal ceremony. I will request all of you to kindly settle down. The press in the front, please. Let's move ahead. I will request all the students to please settle down. So today is the I would request everybody to kindly settle down. All the girls, please be seated. As you all know, his work is known to everybody. बच्चा से लेके बड़ा सब उन्हें जानते हैं, उनके गाने सब लोग सुनते हैं और अच्छे से झूमते और नाचते भी हैं। तो we thought the University of Mumbai thought the university is a place where youth is there. And today, Yo-Yo Honey Singh is one of the biggest youth icon of India. And the journey in which he has gone through, the struggles what he has fought through, he has seen a lot of downfalls, a lot of failures. In spite of all the failures and downfalls, he has tried to climb up the ladder of success slowly and steadily, and now he is climbing. And nobody to stop him. He is on the verge of becoming the Michael Jackson of India very soon. So we thought, who is the best musician in the movie industry? बस कहाँ यार जानने पड़े जाए उसका खराब है बस इतना ना और वाइट मैं अपने वाइट नहीं चल रहा वॉलीबॉल आ रहा अरे हनी सिंह है वो तो ले लूँगा ना मैं दोनों मेन 3 ही जन का पकड़ूँ ना तो वही तो बोल रहा हूँ क्या करने पहले वाइट Hello. कौन है आंटी को लूँ क्या उसको दो इसमें नहीं करो आउट हो गया
अरे जय बस नहीं इतना और टाइट करो वो एडिटर कर लेगा घंटी को अंकल हट जाओ दिल अंकल आपके हाथ दर्द करो क्या नहीं बता दे कट या क्या करें 12 डीबी फट जाएगा भाई So, youth icon. Hello. This is a release of research volume authored by Management Guru Dr. Vivek Devlankar and Ms. Nivedita Shreyan. India's top 100 celebrity brand. Commonwealth Publishers, New Delhi. Friends, a round of applause. The book is being released by youth icon Yo-Yo Honey Singh and Dr. K.M. Vasudevan Pillai, sir. Sir, friends, we need a louder round of applause. This is the moment we have all been waiting for. Friends, we need no introduction to the author, Dr. Vivek Devlankar. But I would take this moment to introduce to you our young author, Nivedita Shreyan. Friends, she is the Public Relations Officer of the Pillai Group of Institutions. A dynamic young lady. She is very, very enterprising. She has her own event management company by the name of Shreyan's Event Management. She's an MA in English and she's currently pursuing her PhD in the Department of Commerce, University of Mumbai. A round of applause for Nivedita Shreyan. Friends, this is her very first book release. I understand that it is her very first book. I invite our young dynamic author, Nivedita Shreyan, to speak few words. With his lucky hands, and we are looking forward for a big sale of this book because of his lucky hands. And also this book is dedicated to our mentor, that is Vasudevan Pillai sir. A big round of applause for him. He is the one who tries to encourage us. So besides work and fun, he also tells us that you... Dr. K. Vasudevan Pillai sir. बस नहीं इतना ये ले ले तो पहले वाला इतना बस ना इतना बस ना हाँ बस ठीक कंटिन्यू कर रहे हैं तेल अंकल क्या फोटो Hello, everyone.
पेन दूँ क्या? Okay, before that we have a small presentation made on Honey Ji, लुंगी डांस. which you would like to see, right? Here for this event. May I request development sir. May I request Pillai sir to kindly felicitate Mr. Siddharth Thakur for all his efforts. We have been troubling him, calling him non-stop. कि आप आ रहे हो ना, हनी जी को लेके आ रहे हो ना. He's been very kind enough to get him here for this felicitation ceremony. Thank you Siddharth ji, thank you very much. ये स्टेज. Thakur is from Viva Group, and even Mehul Thakur and even Kshitish Thakur, they all are students of University of Mumbai. So we are very lucky to have them with us today. स्टिल लेगा करेक्ट है. I prefer going to speak in Hindi और बहुत सारी अंग्रेजी यहाँ पे बोली जा रही है और मैं प्रेफर करूँगा कि हिंदी में बात करूँ सबसे. Is it okay? All right. So I must tell you that the reason I'm here is a big honor. जो मुझे यहाँ पे आज 2 बुक्स लॉन्च करने का मौका मिला और जो अवार्ड से सम्मानित किया गया मुझे. मैं यहाँ पे हूँ. द ठाकुर फैमिली, मयूर ठाकुर, क्षितिज ठाकुर एंड माय यंगर ब्रदर सिद्धार्थ ठाकुर, योर फैमिली, एंड ये सब यहीं इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके. और कुछ साल थे, कुछ सालों पहले देखा जाता था कि हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने बाहर जाते रहे, इंडिया से बाहर जाते रहे. अभी जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आ रहा था तो एक वाइट लड़की, एक गोरी लड़की थी जिसने इंडियन सूट पहना हुआ था. There was a white girl wearing Indian suit and she was stepping out with her bag. So it's a really big honor कि अब विदेश से भी लोग हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं. वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा. और बाकी आप सबको सब कुछ पता ही है और आपको सब कुछ सारा दिन आपके मम्मी डैडी, आपके टीचर्स, आपके और बाकी चाचा अंकल आंटी सब बोलते होंगे ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो. और मुझे लगता है कि आपको सबसे बेहतर पता है कि क्या सही है और क्या गलत है. अगर आपको नहीं भी पता कि क्या गलत है और क्या सही है तो मुझे लगता है एक बार ही कोई ना कोई गलती जरूर करनी चाहिए, उससे ही इंसान सीखता है. हाँ, ये मैंने देखा है. मैं अपने कई दोस्तों को बोलता हूँ भाई ये मत कर, ये मत कर, तो वो मानते नहीं. जब तक वो अभी ये दौर ऐसा मुझे लगता है कि आप किसी को भी जो चीज करने के लिए मना करेंगे वो सबसे ज्यादा करी जाएगी. तो बाकी यही है, बेस्ट विशेष आप सबके लिए. आप जब तक आपकी यहाँ पे पढ़ाई है और जब तक चल रही है तो मुझे ये कहना आप लोगों से कि ये लाइफ अभी बहुत आसान है. ये आपका बेस्ट मोमेंट है आपकी लाइफ का और आपको सब कुछ मिल रहा है. अभी पढ़ने को मिल रहा है और खाने पीने को मिल रहा है और मस्ती मिल रही है और यार दोस्त मिल रहे हैं. लेकिन जब ये स्टेप बाहर जाएगा दुनिया में तो वहाँ पे जस्ट बी केयरफुल और बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करना. यहाँ पे जो गलतियां करनी कर लो, क्योंकि बाहर अगर कोई गलती होती है तो उसका कोई मौका नहीं मिलता सुधारने का. और जो दुनिया है वो बहुत आजकल बड़ी मुश्किल है, आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देगी. तो पढ़ाई है जो आपकी वो आपको यही सिखाई. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना पढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन आपको मुझे लगता है कि यही सिखाई कि हाँ उन सारी प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है और आगे कैसे बढ़ना है जिंदगी में. लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज और
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत जरूरी है। तो आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आई नो आप सब बहुत अच्छी फैमिली से हैं, आप सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपको पैसा और अपनी पॉकेट मनी और आपकी फीस आपको घर से मिल जाती होगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में उस जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं तो आज एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ ब्रदर, एज इन कुछ भी आप मुझे मारे, अंकल चाचू, इतनी मेरी उम्र नहीं है, तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आज जितना भी वक्त पढ़ रहे हैं, अगर आपका कॉलेज 6 घंटे है, उसके बाद आप एक पार्ट टाइम जॉब जरूर करिए। तो वो मुझे लगता है कि उस आपको जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो एक बार जरूर करिए, उससे आपको थोड़ा सा स्वाद पता लगेगा कि बाहर की दुनिया बहुत कड़वी है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये मेरा एक आपको सजेशन भी नहीं है, एक ऐसी बात बोल रहा हूँ। सो बाकी कीप ब्लेसिंग यो हनी सिंह, इज जस्ट द बिगिनिंग। जो भी मैंने देखा स्लाइड में, ये सब कुछ भी नहीं है, और मेरे अभी टारगेट्स बहुत बड़े हैं, और ये भी सिर्फ शुरुआत है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जैसे अभी हमने देखी यहाँ पे आते हुए कि वो गोरी बच्ची यहाँ पे पढ़ाई करने आई है, मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए पहला इंटरनेशनल अवार्ड मैं ही लेकर आऊंगा, और बिना अंग्रेजी में गाया, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और आप लोग इतना प्यार करते हैं तो आप लोगों के लिए भी कुछ बातें हैं। मैं पहले म्यूजिक डायरेक्टर था पंजाब के अंदर, तो 8-10 साल मैंने वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्शन करी, गाने लिखे, और फिर मैं चाहता था कि किसी को इतना अच्छा प्रिपेयर करूं, किसी के एल्बम में इतना अच्छा म्यूजिक दूं और गाने लिखूं कि वो एक इंडियन रॉक स्टार बने और एक इंडिया का इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बने। फिल्में, बॉलीवुड का म्यूजिक तो बहुत बड़ा है ही है, तो उसके पैरेलल भी वो एक पहचान बनाए, जैसे बाहर होता है, हिंदुस्तान से बाहर होता है, जो रॉक स्टार उनकी बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है, वो खुद एक्ट करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश करी कई लड़कों को लॉन्च करने की, उनके कुछ गाने हिट हुए, लेकिन उसके बाद वो आगे तक नहीं लेके गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ना, तो वो वहीं पे रुक जाती है। और जैसे सर ने भी किताब लिखी है सेलिब्रिटीज के ऊपर, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज वो नहीं है जिनकी फोटो उस किताब पे लगी है या जिनको कोई अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है असली, मेरा मानना ये है कि सेलिब्रिटी का असली मतलब ये है द पीपल हु सेलिब्रेट द लाइफ एवरी डे। तो अगर आप भी तो feel yourself, everybody right now in this room, feel yourself from this day onwards that you are a celebrity. Start celebrating your life, no matter what happens. अपनी जिंदगी का हर वक्त सेलिब्रेट करो जैसे मैं करता हूँ, और आपको फील होगा कि आप सेलिब्रिटी हो। और बाकी अगर आपको ये फील होने लगे आप सेलिब्रिटी हो और उसकी तरह आप जीने लगे, तो डेफिनेटली आप इतने अच्छे काम करोगे, आप इसको वैल्यू करोगे अपने इस स्टारडम को। और एवरीबडी इज अ सेलिब्रिटी, व्हाट आई बिलीव, अगर आपको देखने की जरूरत है। तो बाकी इस बात पे मैंने एक रैप लिखा था, वो मैं सुनाता हूँ, अभी रिलीज नहीं हुआ। कहता शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें, पर सुपर हिट पिक्चरों का यो एक्सपेक्टर। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है। ये शुरुआत है, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। और पैसा, दौलत, शौहरत ये सब मैटर ही नहीं करती है, और ये सब आपको फॉलो करेगी। बस आपको लड़ते रहना, और अभी से शुरू कर दीजिए अपनी लड़ाई। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और इजी लाइफ है, मम्मी खाना बना दो, मैं पढ़ के आया हूँ बहुत, तो मुझे भी पता है यूनिवर्सिटी में कौन कितना पढ़ के आता है तो बहुत हम हिंदुस्तानी लोग बहुत लकी हैं कि हमारे माँ बाप इतना प्यार करते हैं कि औलाद 30-30 साल की हो जाती है तब भी उसको सब कुछ देते हैं, जो बाहर ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ही है प्यार से हमें इतना बिगाड़ देते हैं। और अब हम खुद इसको टेक ओवर करें और इसको आगे लेके जाएं। तो आगे की लाइनें थी कि $1 million I don't give a damn, मस्ती वस्ती I don't give a damn, बड़ी है सोच मेरी, बड़े हैं प्लान्स, जो कुछ भी हो आज बिकॉज ऑफ माई फैंस, जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा, कसम बजरंग बली की, देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बटवाऊंगा, जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। So keep listening, keep supporting, thank you very much everybody, all my friends, all my Thakur family, Dr. Vivek sir and everybody. Hypnotize, baby, everything I know, I swear,
पढ़ रहे हैं। मैं जब 2-3 साल पहले यहाँ पे म्यूजिक बनाना शुरू हुआ तो हिंदुस्तान में बहुत सारे अंग्रेजी गाने सुनते थे, बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आप लोग ही सुनते थे। तो मैंने तब ये सोचा था कि इनके आईपॉड से ये अंग्रेजी गाने निकाल दूंगा, ये अपनी भाषा के हमारे गाने सुनेंगे। तो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के वीडियोस और म्यूजिक दूंगा और आपकी बातें करूंगा और हिंदुस्तानी लैंग्वेज में करूंगा। मैंने गुजराती में, तमिल में, बाकी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप, मराठी बेबी। राम राम मंडली। That was Yo-Yo. Hari Singh, a big round of applause. ओके गाइस, रोलिंग रोलिंग। सबसे पहले तो आज आपने यहाँ पे बुक लॉन्च किया, क्या कहेंगे भाई हो जाएगा आप शोर बहुत आ रहा है। उधर भी कैमरा है। अरे आराम से करो, हो जाएगा यार। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और डॉक्टर विवेक सर हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर किताब लिखी है और कॉमर्स के ऊपर किताब लिखी है। तो मैं वही बच्चों से बात कर रहा था, उनको जनरल मैसेज दे रहा था कि सेलिब्रिटी फॉर मी द पीपल हु सेलिब्रेट द लाइफ एवरी डे। सो अगर हम अपने आप को, सब लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी रहती है लाइफ खुद जीनी। तो मैं तो शुरू से अपने आप को सेलिब्रिटी समझता रहा, खुद अपनी ज़िंदगी रोज़ बहुत मस्ती से जीता हूँ, आज भी और पहले भी जीता रहा। सो वही सब बच्चों से बातें कर रहा था। हाउ डज इट फील टू बी कॉल्ड द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया? सही है, माइकल जैक्सन तो बहुत बड़े लेजेंड थे। मैं अभी बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ हिंदुस्तान से। मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं। तो जब ये पहले मैं बड़े बड़े सपने देखता रहा तब भी लोग कहते रहे ये पागल है, आज भी बड़े बड़े सपने देखता हूँ तब भी लोग कहते हैं पागल है, ज़्यादा उड़ रहा है, जो भी है। तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, मैं लगा हुआ भाई। हनी पाजी, एक रूमर फैल रहा है बॉलीवुड में कि आप अगर किसी मूवी में गाना गाएंगे तो आपका एक क्राइटेरिया है कि उस पर्टिकुलर गाने के म्यूजिक वीडियो में आपको ही एक्ट करना है, वरना आप गाने नहीं गाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बात बॉलीवुड में बहुत लिमिटेड लोगों को ही गाने देता हूँ, और क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक करता हूँ ज़्यादातर। मैं बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और राइटर्स के लिए भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लिमिटेड, मेरी गानों को लेके बहुत लिमिटेड चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा काम करना है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपको वीडियो में लेना है, मैं तो किसी को भी नहीं कहता कुछ। भाई ब्लू आइज वायरल होते जा रहा है, हर जगह पे वायरल हो गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, न्यूयॉर्क में? भाई मुझे टाइम नहीं लगा। जो न्यूयॉर्क में आपने ये सवाल पहले भी पूछा था, आप बड़े नाराज लग रहे हो। मैं एक सेकंड आंसर दे दीजिए। हाँ, न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इन जनरल न्यूयॉर्क में था। तो वहाँ पे जिस दिन ब्लू आइज लॉन्च हुआ तो इन जनरल वहाँ पे सारा मीडिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त मिला नहीं। मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोगों को आप अपने आप ही प्रमोट कर देते हो मुझे सब कुछ। लेकिन पाजी ऐसा भी होता है कि मीडिया आपके लिए खड़ी रहती है हमेशा, लेकिन आपको शायद नहीं भाई, नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब ये इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोगों के कैमरे हिल जाएंगे तो फिर मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी खड़ा कर लूँ। भाई वो भागा दौड़ी में निकल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद जानबूझ के नहीं करता। हनी पाजी मोस्ट ऑफ द कॉन्सर्ट्स यही होते हैं। कॉन्सर्ट में तो यही होता है। यहाँ पे तो शुक्र करो ये लॉन्च थी तो यहाँ पे आराम से आज बातचीत हो पा रही है। कॉन्सर्ट में तो आपको पता ही, आप कितनी बार आए हैं। कॉन्सर्ट में तो मेरे को खुद नहीं पता था, मैं कुछ पहन के आता हूँ और वापस कहाँ क्या छूट जाता, कभी घड़ी छूट जाती है, कभी कुछ छूट जाता है। भाई आज काफी लेट भी हो गए आप। मैं भी सीधा फ्लाइट से आया हूँ भाई, जितना टाइम लगा आने में। कॉलेज में आपको बुला करके इस तरह सम्मानित किया गया है और वो भी बुक लॉन्च अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है आई थिंक किसी कॉलेज में मैं आया। मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे कॉलेज में करी हैं, तो जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ लोग ऑनर कर देते हैं। लेकिन ये स्पेशली एक जो किताब थी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, और एज ए यूथ आइकन जो ये सब समझते हैं और इतनी अच्छी बातें समझते हैं तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बोला कि सबके एक मिनट, जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल में सबके इंग्लिश गाने हटा करके देसी गाने आप बजवाएंगे, वैसे एक चीज़ आपको और भी बोलनी चाहिए शायद कि जिस तरह से कहते हैं टीचर्स की इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अब रैपर भी बनो हनी सिंह की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी की तरह कुछ भी बनो, जिसका जो मन है वो बने पहली बात। और इंजीनियर डॉक्टर तो यार कई सालों से बन ही रहे हैं, और आजकल देखिए आपकी कितने प्रोफेशनल सेक्टर्स खुल गए हैं बच्चों के लिए, कितना कुछ बच्चे बन रहे हैं।
आजकल, तो जिसको जो बनना है वो बने यार, अच्छा, कोई किसी को मेरा रोके एक मत। सवाल है आपसे कि आपने कहा कि मराठी एल्बम आने वाला है आपका, तो वो मराठी एल्बम जो कुछ भी आएगा आपका, आशा ताई या लता जी को आप सुनाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली में उन्होंने आपके ऊपर कमेंट किया। नहीं देखो, उनको वक्त मिलेगा तो उनको भी सुनाने चले जाऊंगा मैं। और मेरा बेसिक मकसद है यार, आप लोग ये बच्चे सारे जिनके लिए मैं गाने गाता हूँ, 100 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, पहले मैं इनको तो खुश कर लूँ। तो वो जो जितने भी लेजेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, ऑलरेडी मसरूफ़ हैं चीज़ों में, तो उन तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अभी। तो मेरा मेन मकसद बड़ा सॉर्टेड रहता है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए गाने लगता हूँ, उन्हीं के लिए बनाता हूँ। पाजी, आप सुबह 6:30 बजे उठकर लेजेंड, मूवी लेजेंड अमिताभ बच्चन जी के लिए रैप लिख रहे हैं नया, क्या कहेंगे उस चीज़ के बारे में? उठकर नहीं भाई, मैं सोता ही सुबह 7 बजे हूँ। आपका ट्वीट पढ़ा मैं सारी रात काम करता हूँ, मेरे को तकरीबन 5 साल हो गए हैं रात को सोए हुए। मैं रात को सो नहीं सकता हूँ और दिन में सोता हूँ मैं आराम से, सुबह 6-7 बजे तक काम करता हूँ। अमिताभ जी के लिए आप रैप लिख रहे जी, अमिताभ जी के लिए मैं रैप लिख रहा हूँ और डेफिनेटली हम जल्दी शूट करने वाले हैं गाना। तो मैंने इनफैक्ट गाना लिख लिया, कल सुबह लिखा मैंने, मैं दिल्ली में था कल, तो कल सुबह मैंने गाना लिखा और सुबह की 7 बजे मैं पैकअप किया स्टूडियो से, 7:30 बजे, और सुबह 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के आपके सामने हाजिर। 2 लाइन हो जाए गाने के, 2 लाइन हो जाए गाने के। अमिताभ जी के गाने के। अरे वो अभी सुना नहीं पाऊंगा ना, वो तो कंपनी का गाना है। देखो गरीब आदमी, कलाकार। सलमान खान के लिए कब लिख रहे हैं आप? मैं भाई के लिए भी लिख रहा हूँ, अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो भी दे दूंगा। मैं बड़ा स्लो आदमी हूँ, बड़ा लेजी आदमी हूँ। सनी ये क्या पाजी, आप है ना 2 लाइन सुना 2 लाइन कोई भी गाने के। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्टी खिला रहे मुझे इतनी सारी। लालच देके आपको। हनी पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे कैमरा पर्सन के लिए साइन कर दिया।